Welcome to Ind As 38 Intangible Assets. So let's start with definition. Now, what is the definition of, first of all, we will start with what is the definition of asset? A resource which is controlled by the entity as a result of past events out of which future economic benefits will flow to the entity. A resource which is controlled, not owned. Owned नहीं होना चाहिए, control होना चाहिए by the entity as a result of past events out of which future economic benefits will flow to the entity. Now, what is the definition of intangible asset? Intangible asset क्या होता है? Intangible asset is an identifiable non-monetary asset without any physical substance. Is an identifiable होना चाहिए, non-monetary asset है without any physical substance, कोई भी physical substance नहीं है. अब यहाँ पे non-monetary और monetary का difference बताया गया है. So monetary asset क्या है? Monetary asset whose value in any currency is fixed. It won't change. मतलब बैलेंस शीट में अगर देखें तो कोई भी चीज है, अगर उसकी कोई भी करेंसी में, दुनिया की कोई भी करेंसी में वैल्यू फिक्स है तो वो एक मॉनेटरी एसेट है, और अगर उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो वो नॉन मॉनेटरी एसेट है इन द बैलेंस शीट. नाउ इन द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, हियर वी आर हैविंग two parts: definition criteria. So first of all, we will start with definition criteria. So what is the definition criteria? In it we have the definition which we saw is an identifiable non-monetary asset without any physical substance. We are describing that. So now definition criteria. Identifiability क्या होता है? It must be capable of being separately sold, that is applicable for internally generated intangible asset. Example, कोवैक्सीन for Serum Institute. अगर Serum Institute ने कोवैक्सीन बनाई है तो वो उसको separately, उसका पेटेंट separately सेल कर सकता है. So first of all it must be, मतलब identifiability में first condition है, it must be capable of being separately sold, और दोनों में से कोई भी एक. It must have legal or contractual right. It must have a legal or a contractual right applicable for a purchased intangible asset. मतलब अगर purchased intangible asset है तो उसपे ये वाला contractual right वाला लग जाएगा, और अगर internally generated goodwill है तो वो separately sold वाला concept लग जाएगा. So in this example if Serum sells the patent to some other company, मतलब अगर सीरम जो है वो अपनी पेटेंट किसी और को बेच देती है तो वो दूसरी कंपनी के लिए वो एक लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जैसा हो गया. सो वो आइडेंटिफाइबल कर सकता है. वी डू नॉट हैव टू चेक द सेपरेबिलिटी कॉन्सेप्ट एज वी हैव पेड फॉर इट. मतलब अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं देखने का वो सेपरेटली सेलेबल है कि नहीं. अगर वो परचेज इंटेंजिबल एसेट है तो वो यहाँ इस क्राइटेरिया में फॉल हो जाएगी. एग्जाम्पल, लैंडिंग चार्जेस ऑफ एयरपोर्ट आर कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल एसेट इवन दो दे आर नॉट ट्रांसफरेबल. मतलब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि लैंडिंग चार्जेस आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. मतलब ऐसा नहीं, मतलब इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हम सेपरेटली सेल नहीं कर सकते इसलिए वो हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं है, क्योंकि ये परचेज इंटेंजिबल एसेट है, और परचेज इंटेंजिबल एसेट में वही है कि लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अगर मिल रहा है तो फिर ऊपर वाली कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, और दोनों में से एक ही है, बिकॉज हियर इट इज रिटन ऑन. नाउ non-monetary. So the thing we saw that non-monetary intangible assets are not readily convertible into cash from which variable future economic benefits are generated. Fixed future economic benefits नहीं, मतलब are not readily convertible into cash. Intangible assets एकदम से आप बेच नहीं सको और वो एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते. फ्रॉम विच वेरिएबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर जनरेटेड, मतलब उसमें वेरिएबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होता है? इंक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन कॉस्ट और अदर बेनिफिट्स, कुछ भी हो सकता है. तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन कॉस्ट और अदर बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब ये है. नाउ असेट का वहां पे हमने देखा था कंट्रोल वाला एक मेन पॉइंट था कि विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड नॉट ओन्ड. सो अब कंट्रोल का क्या होता है? So what is a control? Control it generally means ownership. However, to prove control, following conditions must be satisfied. एक तरीके से ownership है, but इसको prove करने के लिए दो conditions है. To obtain future economic benefit from asset, entity must have power to restrict others from using it. मतलब आपको future economic benefit हो सकता है, उसकी probability है, और आप किसी और को restrict कर रहे हो कि आप इसको यूज मत करो. तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आप एक्टिवा लेते हो तो आप अपने सिबलिंग्स को नहीं देते हो. सो उस पर आपका कंट्रोल है. नाउ हियर इट इज एग्जांपल एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट कैन बी शोन एज इंटेंजिबल एसेट ओनली इफ बॉन्ड इज देयर. इफ देयर इज नो बॉन्ड, नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, as entity does not have control over departure of employees.
अगर किसी किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के साथ बॉन्ड कर रखा रखा है कि तुम 3 साल या 4 साल तक मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तो एक तरीके से वो हम इंटेंजिबल एसेट के तरीके से शो कर सकते हैं। बट अगर कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर जो ट्रेनिंग कॉस्ट दी है तो वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल नहीं है कि एम्प्लॉयज हमारे साथ ही रहेंगे, वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। सो इट वाज दिस एग्जांपल। एंड मार्केट शेयर ऑफ फ्लिपकार्ट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट एज एंटिटी डज नॉट कंट्रोल द नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं बोल सकती कि हमारे जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि हम हमारी मार्केट में इतने वैल्यू है, इतना ब्रांड वैल्यू है। सो market share of Flipkart is not an intangible asset as entity does not control the number of customers. Flipkart अपने पास ही कितने कस्टमर्स आएंगे वो कंट्रोल नहीं करेगा। आज कोई कस्टमर फ्लिपकार्ट से खरीद रहा है, कल वो अमेजोन से खरीदेगा, तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। सो वो एक इंटेंजिबल एसेट नहीं है, क्योंकि इसके हमारे पास कंट्रोल नहीं है। नाउ व्हाट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन ऑफ asset? Future economic benefits generated from such asset must be probable और मोर लाइकली, मतलब 50% और मोर प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तो वो एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं। नाउ नोट, advertisement expenses are never accounted as intangible assets as increase in revenue is never solely attributable to such expenses। मतलब अगर आईपीएल की राइट्स है और वो वीवो ने ले रखी है, तो उसका ऐसा मतलब नहीं है कि अगर वीवो की सेल्स बढ़ी है तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से ही बढ़ी है, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। सो इट कान बी डिटरमाइन कि वो सेल जो बढ़ी है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से ही बढ़ी है। सो इट इज नॉट अकाउंटेड एज इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। नो फिजिकल सब्सटेंस, intangible asset does not have any physical substance. Moreover, documentation of any intangible asset can never prove physical substance. Hence, any tangible portion of intangible asset will be ignored if it is insignificant। मतलब वो तो पहले पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पीपी वाले में, कि अगर एक पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर दिए तो सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है, कि वो सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंट पार्ट है, वो पेन ड्राइव का उतना महत्व नहीं है। सो हियर सॉफ्टवेयर विल बी काउंटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। सो उसका ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ जनरल क्राइटेरिया, वो तो जनरल क्राइटेरिया तो पता ही है, एफएबी विल फ्लो टू द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। सो डन। नाउ वी विल मूव टू द स्कोप। अब स्कोप्ड आउट आइटम्स, स्कोप्ड इन आइटम्स। स्कोप्ड आउट में क्या है? इंटेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई किसी का बिजनेस ही सॉफ्टवेयर बेचने का है, तो वो तो इन्वेंटरी में चला जाएगा, इंडिया टू में चला जाएगा। इंटेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल मतलब ये वो वाला कि हमारे पास इंटेंजिबल एसेट पड़ी है, बट हम अब हम उसको सेल सेल करने के लिए क्लासीफाई कर रहे हैं, तो वो इंड एस 105 में आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो तो सिलेबस में नहीं है, सो डोंट माइंड इट। डिफर्ड टैक्स एसेट, अगर कोई डिफर्ड टैक्स एसेट है तो वो इंटेंजिबल एसेट में नहीं आएगा। असेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वो इंड एस 19 में कवर है, सो इसमें नहीं आएगा। प्लान्ड एसेट्स, प्लान्ड एसेट्स प्लान्ड एसेट्स भी इसमें नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स में स्कोप्ड आउट है, इस एएस में स्कोप्ड आउट है। गुडविल अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस, मतलब अगर कोई बिजनेस अमालगमेशन मर्जर हो रहा है और उससे गुडविल अराइज हो रही है, तो वो इसमें नहीं आएगी, वो एक उसका अलग ही स्टैंडर्ड है। वो इंड एस 103 में बिजनेस कॉम्बिनेशंस में हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ असेट 106, मिनरल राइट्स एंड रिजर्व्स, ये दोनों तो पहले भी आ चुके हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो स्कोप्ड आउट है, इंडिया 32 में 107 और 109 में आएंगे, तो वो वहां डिस्कस हो जाएगा। स्कोप्ड इन आइटम्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी, फाइनेंशियल लीज ऑफ मोशन पिक्चर्स राइट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा फॉर सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, मतलब ये सब आ जाएगा। मतलब इसमें स्कोप्ड इन में क्या है कि इसके अलावा जो भी होगा वो स्कोप्ड इन हो गया, बट ये स्पेसिफिक चीजें दी है कि मोशन पिक्चर राइट्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, कॉपीराइट, पेटेंट और ऐसी कोई चीजें है, तो वो स्कोप्ड इन हो जाएगी। नाउ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब इनिशियल मेजरमेंट में क्या क्या है? सेपरेट एक्विजिशन, सेल्फ डेवलपमेंट, एक्सचेंज ऑफ असेट्स, डिफर्ड कंसिडरेशन, वो तो सेम एज इंडिया 16 है, मतलब इंडिया 16 में जो था वही इस पे लगेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट सब लगेंगे। इन इंटेंजिबल असेट अक्वायर्ड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट, इंटेंजिबल असेट अक्वायर्ड थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशंस। आप बोलोगे कि उसमें पहले स्कोप आउट किया, फिर इसमें ऐसा आ रहा है कि इनिशियल मेजरमेंट, वो डिस्कस करेंगे। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या क्या है कि अकाउंटिंग मॉडल्स, कॉस्ट मॉडल या रिवोल्यूशन मॉडल है, वो डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब वो सब ये सब चीजें इंडिया 16
में डिस्कस हो चुके हैं, सो वो वहां से रिफर कर लेना। ये सारी चीजें वहां पे सेम ही है, यहाँ पे सेम ही लग रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन, ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन सरप्लस, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, सब सेम है, वहां से सब आएगा। अब ये सब इनिशियल मेजरमेंट के सब अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। सेपरेट एक्वेशन। So, in separate acquisition, what all things are discussed? Separate acquisition. Cost to be included. Purchase cost plus import duty plus other non-refundable trust professional fees plus cost of testing plus directly attributable cost minus trade discounts and rebates. ये तो सिंपल है, जो पहले भी पढ़ चुके हैं। Cost to be excluded. Cost of introducing a new product. अगर मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट ला रहा है तो उसका जो कॉस्ट है वो नहीं आएगा। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट रिलेटिंग टू सच न्यू प्रोडक्ट। अगर वो नया प्रोडक्ट लाने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल चीजें की है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स वो तो आएगा ही नहीं। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस एट ए न्यू लोकेशन, अगर कोई न्यू लोकेशन पे जा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ रीडिप्लॉयमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सक्लूड करना है, ये क्वेश्चंस में भी आएंगे। ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट इनकर्ड बिटवीन द डेट इंटेंजिबल एसेट अवेलेबल फॉर यूज एंड एक्चुअली पुट टू यूज, मतलब ये सब सेम मोस्टली इंडिया 16 जैसा ही है। नाउ सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरनली जनरेटेड गुडविल, internally generated other intangible assets. अब internally generated goodwill में क्या है? It is not identifiable separately, nor does it arise out of any legal or contractual right. Hence, it is not accounted in the books of accounts. मतलब वो हम अकाउंट नहीं करते। डिफरेंस डिफरेंस एंड बिटवीन डिफरेंस एंड बिटवीन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल difference between fair value of identifiable net asset and fair value of entity market capitalization does not represent cost of an intangible asset which is controlled by the entity and which is separately identifiable. Hence, such difference can never be accounted as a goodwill. Difference is not in our control and its value changes on day-to-day basis. Difference between fair value of identifiable, fair value of identifiable net asset and fair value of entity market does not represent cost of an intangible which is controlled by the entity and which is separately identifiable. Hence, such difference can never be accounted as goodwill. मतलब ये क्या है कि अगर कोई चीज में डिफरेंस बिटवीन क्या क्या है, difference between fair value of identifiable net asset and fair value of entity market capitalization, मतलब ये asset minus liability और fair value of market capitalization मतलब हमारे total number of shares into जो लिस्टेड जो स्टॉक मार्केट पे जो शेयर्स है उनकी स्टॉक मार्केट पे जो प्राइस चल रही है उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो मार्केट कैप हो गया। और अगर उन दोनों का जो डिफरेंस है डज नॉट रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी does not represent cost of an intangible asset which is controlled by the entity and which is separately identifiable. Hence, such difference can never be accounted as goodwill. मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है कि मार्केट कैप माइनस फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। मार्केट कैप क्या हो गया? शेयर्स इनटू प्राइस, और ये असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली डायरेक्टली गुडविल नहीं है। सो डिफरेंस इज नॉट इन आवर कंट्रोल एंड इट्स वैल्यू चेंजेस ऑन डे टू डे बेसिस, मतलब इसकी वैल्यू हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। सो इट इज नॉट classified as intangible asset. Now, in internally generated other intangible asset, मतलब गुडविल के अलावा कुछ भी हो वो titles, copyrights, trademarks, brand names, etc. should be recognized as intangible asset only if cost is measured reliably. Criteria for accounting internally generated: there are two phases of developing any asset: research phase, development phase. अब अगर कोई भी और इंटेंजिबल असेट हम कर रहे हैं तो दो फेज हो गए, रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज। अब रिसर्च फेज मतलब क्या होगा? वो इन्वेस्टिगेशन फेज है। सो इट इज अ प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन विद अ व्यू टू गेन नॉलेज, मतलब वो तो एक
हम रिसर्च कर रहे हैं, सच एक्सपेंसेस आर इमीडिएटली टेकन टू पीएनएल अकाउंट। मतलब जब तक रिसर्च फेज में है वो पीएनएल में जाता जाता रहेगा। डेवलपमेंट फेज, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ रिसर्च फेज इनटू एक्चुअल रिजल्ट्स, इनटू एक्चुअल रिजल्ट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ गेन नॉलेज। मतलब जो रिसर्च फेज में जो भी नॉलेज गेन किया है उसको एक्चुअल रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने का वो डेवलपमेंट फेज है। डेवलपमेंट फेज रिक्वायर्स ऑल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये 6 कंडीशन दी है, 6 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। टेक्निकल फिजिबिलिटी मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड, टेक्निकल मतलब वो मार्केट में यूज करने के लिए टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए। एंटिटी मस्ट हैव इंटेंशन टू कंप्लीट इंटेंजिबल एसेट। मतलब इंटेंजिबल एसेट बना रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में छोड़ देना। उसका उनका उनका इंटेंशन होना चाहिए कि हम बनाएंगे, हम कंप्लीट करेंगे। एंटिटी मस्ट हैव टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कंप्लीट इंटेंजिबल एसेट। मतलब औकात होनी चाहिए इन शॉर्ट। अपने वो इंटेंजिबल एसेट बनाने को कंप्लीट करने के लिए अपनी औकात होनी चाहिए, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। एंटिटी मस्ट हैव एबिलिटी टू यूज और सेल सच इंटेंजिबल एसेट। मतलब या तो खुद यूज करेगी या तो किसी और को सेल करेगी वो इंटेंजिबल एसेट। एफएबी विल फ्लो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये तो ठीक है। 6 कंडीशंस क्या क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी, उनको उसको इंटेंजिबल एसेट को कंप्लीट करने की इंटेंशन होना चाहिए। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे। एंड इट मस्ट हैव एबिलिटी टू यूज और सेल सच इंटेंजिबल। इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ डेवलपमेंट फेज, all costs will be capitalized subject to the impairment testing as per Ind As 36। मतलब डेवलपमेंट डेवलपमेंट स्टेज की सब कॉस्ट कैपिटलाइज होगी बट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये एक एग्जांपल, ये बाद में देखेंगे ये पूरा एग्जांपल। एक्सचेंज ऑफ असेट्स तो इंड एस 16 के तरीके सेम है, डिफर्ड कंसिडरेशन सेम है। इंटेंजिबल एसेट अक्वायर्ड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब हम गवर्नमेंट ग्रांट थ्रू अक्वायर कर रहे हैं कोई भी इंटेंजिबल एसेट। सो मेथड, रिकॉर्ड इंटेंजिबल एसेट एट इट्स फेयर वैल्यू। इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट एट इट्स फेयर वैल्यू टू कैश बैंक, नॉमिनल वैल्यू टू गवर्नमेंट ग्रांट। मतलब इसमें क्या है कि थोड़ी अमाउंट की ग्रांट मिल रही है, मतलब पूरी अमाउंट की ग्रांट नहीं मिल रही। सो पहले इंटेंजिबल एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो टू कैश बैंक, नॉमिनल वैल्यू जो जो भी अपन ने पे किया है टू गवर्नमेंट ग्रांट, जितना अपन को गवर्नमेंट ग्रांट मिला है वो। और मेथड टू रिकॉर्ड इंटेंजिबल एसेट एट इट्स नॉमिनल वैल्यू। मतलब इसमें इसमें क्या होगा कि अगर 100 करोड़ की वैल्यू है तो 100 करोड़ का पूरा ग्रांट मिल रहा है। सो हम 10 रुपए, 1 रुपए उस पर इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में। सो इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू जो होगी वो। Now, asset acquired through business combinations. गुडविल, परचेज कंसिडर गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट दो है। सो गुडविल, गुडविल को कैसे करेंगे? परचेज कंसिडरेशन, जो भी परचेज कंसिडरेशन निकल के आएगा वो हम इंटर में निकालते हैं। परचेज कंसिडरेशन कैसा निकालना, वो दिया ही होता है कि हम कितना पे करेंगे, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, तो वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। और कैपिटल रिजर्व को दूसरा एक नाम दिया गया है, गेन इन बारगेन परचेज। सो ये तो सिंपल है कि परचेज कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, उसमें से क्या निकलेगा? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अगर फेयर वैल्यू ऑफ अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो गुडविल, नहीं है कम है तो कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। नाउ Now we will go with other intangible asset. All other intangible assets acquired through business combinations will be accounted at fair value even though they are not identified and accounted in the books of vendor company. For example, research and development of vendor company can be accounted as intangible asset by acquired company if it fulfills the definition and recognition criteria even though not shown in vendor company's books. All other intangible asset acquired through business combination will be accounted at fair value even though they are not identified and accounted in the books of vendor company। मतलब इसमें क्या है कि हमें ऐसा कुछ दिख रहा है सामने वाली कंपनी में जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, बट हमें लग रहा है कि ये एक हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट हो सकती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेंडर कंपनी, अगर सामने वाली कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रखा है तो उसको अकाउंट नहीं किया है प्रॉपरली कि उनको लग रहा है कि ये रिसर्च फेज में ही है बट हमें लग रहा है कि ये डेवलपमेंट स्टेज में आ चुका है, तो वो हम फेयर वैल्यू पे लेके आ सकते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फॉर एग्जांपल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेंडर कंपनी कैन बी अकाउंटेड एज इंटेंजिबल एसेट बाय एक्वायर्ड कंपनी इफ इट फुलफिल्स डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इवन दो नॉट शोन इन वेंडर कंपनी। मतलब सामने वाले की बुक्स में नहीं दिख रहा है बट हमें लग रहा है कि वो एक हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट है, तो हम उसको फेयर वैल्यू पे लेके आ सकते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नाउ अदर पॉइंट्स,
Subsequent expenditure. If subsequent expenditure fulfills definition and recognition criteria, then capitalize it. Generally, it does not satisfy recognition principles, so it will be taken to P&L account. अगर subsequent expenditure कोई भी कर रहा है तो वो definition और recognition criteria fulfill करा तो capitalize करो, या तो फिर P&L में ले जाओ. Useful life of an intangible asset will be based on contract period or otherwise expected period of cash inflow. Finite useful life है तो amortization करो. अगर इनफाइनाइट यूजफुल है तो अमोर्टाइजेशन नहीं होगा. इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एट द एंड ऑफ एवरी रिपोर्टिंग पीरियड. एट द एंड ऑफ एवरी रिपोर्टिंग पीरियड हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी. इसका एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है, स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस वाला है. सो इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ, अमोर्टाइजेशन नहीं करना है. इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हर साल के एंड में होनी चाहिए, हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में होनी चाहिए. फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड टू डिटरमाइन यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करने के लिए कौन से फैक्टर है? एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ असेट, एक्सपेक्टेड एक्शंस बाय कॉम्पिटिटर्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीरियड ऑफ कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है, इंडस्ट्री में कैसे स्टेबिलिटी है, वेदर यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स डिपेंड ऑन एनी अदर एसेट. मतलब कोई और एसेट पे अपने इंटेंजिबल एसेट की लाइफ डिपेंड तो नहीं कर रही है ना. सो ये फैक्टर्स के हिसाब से हम यूजफुल लाइफ डिराइव करते हैं. रिन्यूअल कॉस्ट. अब रिन्यूअल कॉस्ट में क्या है कि एग्जांपल है कि स्टारबक्स और सब्यसाची ने ऐसा कर दिया है कि टाइप कोलैबोरेशन किया है कि हम 5 साल तक डिजाइनर कप्स देंगे आपको, और 5 साल की 5 करोड़ की वैल्यू 5 करोड़ की वैल्यू पहले से दे रहे हैं. और फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अब रिन्यूअल के टाइम पे दो चीज हो सकती है. या तो रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट हो सकती है, या फिर रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो सकती है. सो इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट, इफ रिन्यूअल कॉस्ट इज इनसिग्निफिकेंट as compared to future economic benefits and third party consent is obtained and all conditions relating to the renewal are satisfied, then such renewal cost will be capitalized if it provides benefits for more than one reporting period. मतलब 5 करोड़ की वैल्यू दे दी और अब ऐसा बोल रहे हैं सब्यसाची वाले कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना होगा तो हम 1 लाख पर ईयर में 3 साल के लिए करेंगे, मतलब 3 लाख. तो 5 करोड़ के सामने 3 लाख तो बहुत इनसिग्निफिकेंट है. सो उसको उसके साथ ही कैपिटलाइज कर दो, मतलब 5,03,000 साथ में कैपिटलाइज कर दो. Moreover, the renewal period will be added into useful life of the existing intangible asset. Now, significant है, अगर किसी का significant renewal cost है. When renewal cost is significant as compared to future economic benefits, then account such cost as separate intangible asset. Hence, cost of new intangible asset is equal to cost of renewal charges. मतलब ऐसा हो जाएगा कि पहले तो 5 करोड़ की है, अब स्टारबक्स वाला ऐसा बोल रहा है कि आपकी जो रिन्यूअल कॉस्ट होगी वो 3.5-4 करोड़ होगी. तो अब वो तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है ना. सो उसको हम सेपरेट इंटेंजिबल एसेट के तरीके से दिखाएगा, और जो पुराना वाला इंटेंजिबल एसेट है उसको अमोर्टाइज करके फिनिश करके नया वाला इंटेंजिबल एसेट दिखा देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सो दिस वाज इंपॉर्टेंट. सिग्निफिकेंट रिन्यूअल कॉस्ट एंड इनसिग्निफिकेंट रिन्यूअल कॉस्ट, वो दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. Now, residual value. Generally, residual value of intangible asset is zero unless any value is guaranteed by third party. मतलब third party अगर कोई वैल्यू गारंटी करे तो वो जीरो तो नहीं होगी. और active market to determine fair value exists and such market will exist at the end of its useful life. Market मतलब कोई भी एक active market उस asset को बेचने के लिए है, और जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी तब भी वो एग्जिस्ट करेगा, तब हम उसकी रेसिडुअल वैल्यू ले सकते हैं, वरना जीरो ही दे दो. Method of amortization based on consumption ratio. Ratio of benefits derived through actual utilization. If consumption ratio is not available, then SLM will be used. मतलब intangible asset को amortize कैसे करेंगे? Based on consumption ratio. Ratio of benefits derived through actual utilization. If consumption is not available, तो फिर SLM के through कर सकते हैं. Now, one important concept again. Service concession agreement. अब ये क्या है? पीपीपी कॉन्सेप्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी एक हाईवे बनाने का सोच रही है और टोल प्लाजा के थ्रू वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का सोच रहे हैं. अब उसमें कंडीशन है. प्रोजेक्ट एंटर्ड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इंड एस, इंटेंजिबल एसेट विल बी अमोर्टाइज्ड ईदर इन द रेशियो ऑफ रेवेन्यू और इन द रेशियो ऑफ कंजम्पशन चॉइसेस गिवन. मतलब इसमें क्या है कि अगर इंड एस अप्लाई, आपके कंपनी पे इंड एस अप्लाई होने से पहले आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, तो आप अमोर्टाइज कैसे कर सकते हो? रेशियो ऑफ रेवेन्यू या फिर रेशियो ऑफ कंजम्पशन आपके हिसाब से. बट
If projects are entered after application of Ind AS, तो एक ही ऑप्शन है रेशियो ऑफ कंजम्पशन. Difference between ratio of revenue and consumption. Ratio of revenue is highly affected by external market forces such as selling activity, change in price and demand, etc. While ratio of consumption reflects utilization of asset. Ratio of revenue can also be used for amortization when revenue and consumption are highly correlated. Predominant factor to determine consumption is revenue. मतलब इसमें क्या है कि रेशियो ऑफ रेवेन्यू के साथ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि प्राइस क्या होगी, डिमांड क्या होगी. बट रेशियो ऑफ कंजम्पशन क्या है कि अपन कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने यूटिलाइजेशन कितना है. सो उसके हिसाब से रेशियो ऑफ कंजम्पशन डिटरमाइन हो रहा है. सो मोर रिलायबल क्या है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन है. सो हम हर बार रेशियो ऑफ कंजम्पशन को मोर रिलायबल लेके उसको ही प्रेफरेंस दे रहे हैं. और रेशियो ऑफ रेवेन्यू कैन ऑल्सो बी यूज. कब? दो 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 कंडीशन है जब रेशियो ऑफ रेवेन्यू भी यूज कर सकते हैं. जब रेशियो ऑफ रेवेन्यू एंड रेशियो ऑफ कंजम्पशन आर हाईली कोरिलेटेड, मतलब दोनों एक तरीके समान ही है, मतलब 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ ये दोनों का. तो अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, तो दोनों यूज कर सकते हैं. और प्रीडोमिनेंट फैक्टर टू डिटरमाइन कंजम्पशन इज रेवेन्यू, मतलब किसी इंटेंजिबल एसेट को कंज्यूम कैसे कर रहे हैं तो वो डिटरमाइन रेवेन्यू बेसिस पे ही हो रहा है. तो हम रेवेन्यू या रेवेन्यू रेवेन्यू बेसिस भी ले सकते हैं. सो रेशियो ऑफ रेवेन्यू भी ले सकते हैं उसमें, उस कंडीशंस में, ये दो कंडीशंस में कि रेवेन्यू और कंजम्पशन आर हाईली कोरिलेटेड, या फिर प्रीडोमिनेंट फैक्टर टू डिटरमाइन कंजम्पशन इज रेवेन्यू, मतलब अगर कोई भी प्रीडोमिनेंट फैक्टर टू डिटरमाइन कंजम्पशन इज रेवेन्यू, मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट का कंजम्पशन डिटरमाइन करने के लिए हम रेवेन्यू को ही देख रहे हैं, तो हम रेशियो ऑफ रेवेन्यू यूज कर सकते हैं उस केस में. नाउ डिस्क्लोजर्स क्या क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, cost or revaluation model applied, reconciliation statement, useful life, method of amortization, impairment losses if any intangible asset obtained through government grant. Now difference between Ind AS 38 and Ind AS 26 definition. अब Ind AS 38 में हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेंशन नहीं किया है. वो Ind AS 26 में मेंशन था कि इंटेंजिबल एसेट क्या है कि कोई भी जो एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, बट वो हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज होना चाहिए. बट Ind AS 38 ऐसा कुछ मेंशन नहीं करता, वो जनरलाइज कर दिया है. सो इसमें मेंशन किया है वो चीज, इसमें मेंशन नहीं किया. नाउ यूजफुल लाइफ, इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ. इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट Ind AS 38 में मेंशन किया है. नो अमोर्टाइजेशन सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, मतलब इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ है तो क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन नहीं करेंगे, बट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते रहेंगे. बट AS 26 में क्या है कि 10 साल की उसकी यूजफुल लाइफ होगी कोई भी इंटेंजिबल एसेट की, अगर कुछ दिया ना हो तो. रेशियो ऑफ अमोर्टाइजेशन, यहाँ पे Ind AS 38 कंजम्पशन बेसिस पे ही बोलता है कि आप कंजम्पशन बेसिस पे ही अमोर्टाइज कीजिए. बट AS 26 रेवेन्यू रेशियो ऑफ रेवेन्यू के बेसिस पे अमोर्टाइज करने को बोल रहा था. गाइडेंस ऑफ SCA सर्विस कंसेशन अग्रीमेंट, तो उसका मेंशन Ind AS 38 में, AS 26 में कुछ नहीं था. So that is it. So here was that example that I mentioned that I will be discussing later. Actimate is undergoing a process of developing a product. It has incurred the following expenses. मतलब दो एक्सपेंसेस किए, 6 लाख. दो टाइप के मतलब पीरियड है. 1 अप्रैल टू 30 जून में 6 लाख किए, 12 लाख 1 जुलाई टू 31 मार्च में किए. नाउ क्या है, मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑन 1 जुलाई. फर्स्ट जुलाई को टेक्निकल फिजिबिलिटी आ गई है, तो वो डेवलपमेंट फेज में चला गया. इसका मतलब 1 जुलाई के बाद डेवलपमेंट फेज होगा, तो उसके पहले का जो भी होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे रिसर्च टू कैश और बैंक 6 लाख, और ये 6 लाख को हम PNL में ले जाएंगे. अब PNL अकाउंट डेबिट टू रिसर्च. ये पहली दो एंट्री हो गई कि हमने जो रिसर्च में जो भी खर्चा किया है वो PNL में ले गए. नाउ estimated recoverable amount of such process was 13 lakh at the end of the year. So at the end of the year 13 लाख उसकी रिकवरेबल अमाउंट है. नाउ पहले ये 12 लाख को हम कैपिटलाइज करेंगे. सो इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट, इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कुछ भी ले सकते हैं.
कैश बैंक भी देख सकते हैं, कुछ भी चलेगा। 12 लाख। अब हमें डेवलपमेंट फेज में कोई भी असेट हो तो उसको हम हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। तो इम्पेयरमेंट में क्या देखेंगे, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। तो यहाँ पे 13 लाख है और हमारी तो कैरिंग अमाउंट 12 लाख है। तो इसमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने का, क्योंकि लॉस है ही नहीं तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ ये 31/3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, एस्टिमेटेड फोर्थ ईयर इनकम रुपीज 20 लाख फॉर द सेम प्रोसेस, मतलब नेक्स्ट ईयर में उसने 20 लाख और इसी प्रोसेस में। और रिकवरेबल अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, वाज रुपीज 18 लाख। अब अब क्या हुआ कि इसने और खर्चा किया है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले तो कैपिटलाइज कर दो जो 20 लाख है। तो क्रेडिटर, पहले तो कैपिटलाइज करने का, फिर देखने का कि वो होगा कि नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है कि नहीं। तो 20 लाख कर दिया अपन ने। नाउ नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल डू द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। रिकवरेबल अमाउंट क्या है, रिकवरेबल अमाउंट एज पर क्वेश्चन इज 18 lakhs। ये रही 18 lakhs है। सो रिकवरेबल अमाउंट 18 लाख है। और कैरिंग अमाउंट क्या है, पहले का पहले का 12 लाख था, 12 + 20, 32 lakhs। तो अब रिकवरेबल अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन, बट इसमें तो रिकवरेबल अमाउंट कम है। कितने से कम है, ये डिफरेंस है 14 लाख का। अब इस डिफरेंस को हम इम्पेयरमेंट लॉस की तरह बुक कर देंगे। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 14 lakhs टू accumulated impairment loss account. And this is it. It's Ind As 38, and we finish here with all the explanation of it. Thank you.